हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत सारे मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत लेकिन आज का जो हमारा वर्कशॉप है वो बहुत ही स्पेशल है। एंड गट रीसेट इज अ मैजिकल फिनोमिना ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट टू एवरीवन कि आपने अपने लिए कुछ किया है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि गट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और उसमें भी सबसे ज़्यादा उसके बैक्टीरिया जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे डेड होते हैं, और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे स्पेशल एक वुमेन के लिए गिफ्ट है, जहाँ पे एक महिला पूरी सोसाइटी में रोल मॉडल की तरफ काम करती है। ऐसा नहीं है कि मेल काम नहीं करता, लेकिन फीमेल को हर वक्त वही फाइटिंग स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है, खुद को ख़त्म करके भी वो सोसाइटी को प्रिवेंट करती है। उसी तरह हमारे गट माइक्रोम भी वैसे ही है, जो खुद मर जाते हैं लेकिन हेल्थ को बचाने के लिए, बॉडी को बचाने के लिए अपने आप पे स्ट्रगल करते हैं। इज वेरी इन डेंजर सिचुएशन व्हेन वी आर गोइंग विद ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसरस एंड सो मेनी डिजीजेस इन दैट। सो आज हम जो पूरा लर्न करेंगे, हमारा डे 1 है, व्हाट इज द गट एंड व्हाट इज द गट माइक्रोम, हाउ इट इज वर्क फॉर आवर बॉडी। ठीक है, चलो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं मेरी वेलनेस जर्नी। बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि आप क्या काम करते हो रिगार्डिंग द वेलनेस इन द कम्युनिटी। आई एम शेयरिंग हियर माय इंट्रोडक्टरी सेशन रिगार्डिंग द प्रोफेशनल हिस्ट्री। माई सेल्फ डॉक्टर नेहल गजेरा। आई होप कि आप सब लोग को स्लाइड दिख रहा है, चैट ओपन है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करना। यस, इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, so please answer it. Okay. So I am a clinical researcher and child psychologist, pediatric nutritionist, food therapy expert, post nutritional expert, and the cancer nutritional specialist. Basically, I am a homeopathic dermatologist and I am working on the autoimmune disease. I have a PhD degree on the alternative medicine, so more than 100 certification course in nutritional wellness, even infertility, Garb Sanskar, mental health, even heartfulness meditation, alternative therapies, the living therapy, light therapy, music therapy, vibration therapy, spiritual journey. I have achieved more than 20 awards in the health and wellness center. Also, I am a community leader at the international organization by the UNESCO. And today I received one more award. About my organization, I have Eswar Nutra Food, which prepared the more than 30 food products. Is 100% chemical free and prepared from the organic and the plant based. I have my own Nutra cosmetic center. In that, we are preparing the all cosmetic which from the food. जो खा नहीं सकते वो लगा नहीं सकते, this is the Nutra cosmetic. And the health and hygiene, we are preparing the EcoFlume sanitary pad. It's a plastic free. These are our education courses. I have a membership of the tea curry company, Puspam Foods, Vito Bites, Pahar Se Organic, and many more. I am an expert in mental health organization of the Mind Group. Also, the Brain Development Center in Rice Brain Center, Nice and Wise expert, and BRC Clinic at the home. I am a Zen Onco organization cancer specialist in the Zen Onco. This is our books. So many people are already known for that. This is our bed, which are prepared from the banana and bamboo peels, and it's 100% organic. I am a wellness expert from the Disease Diabetes Organization from the UK. So UK government selected me as a wellness expert from the diabetes. Today I received one more national award. It's the Param Vibhushan Seva Ratna Samman National Award. In that I received the social community leader to serving the maternal in the during the phase of the pregnancy. I am an excellence in the wellness leader from the Olympiad is Education Center and the world leader by the UNESCO. I have also nominated and awarded by the Rashtriya Seva Chikitsa Samman Shri Award by the government of MSME and Niti Aayog. With the Indian Pride Doctor Award, Human Exercising Award, these are the all phases you have to just go through. I am a dietitian in the Vietnam, is international certified dietitian. I am international conclave the Ayush Samrat Award. I am also received the GREEP Award from the government of the Gujarat for prevention of the maternal death. Is the Health and Star Rising Award by the Phase 3. Is the nomination membership memento by Garg Sanskar. I completed the more than 1,700 ANC for the Garg Sanskar. I also received the GREEP Award for the prevention of the malnutrition. It's a runner award.
and the maternal death prevention and the malnutrition for SPCC, innovation for IC and wellness, also program management and innovation. I have a MOU for Rajasthan government for drumstick processing unit, and the news brief by CM who published our processing Moringa processing unit in the Rajasthan. I represent myself as a sanitary hygiene and the prevention in the human health behalf of Government of Gujarat and our Chief Secretary presenting with the menstrual hygiene knowledge. I also selected in the G20 as a panelist doctor for the lab SPCC. I am a wellness expert in G20 panelist community. These are the media communication is a TV support. Our respected health minister, earlier health minister, Sri Rajikesh Bhai Patel, share my nutrition support in her Insta page. These are the all picturization. This is my YouTube channel, Dr. Nehal Gajira OIT Clinic. If you not subscribed, please go and subscribe. I am a Mindro expert and Anchor expert. This is my Instagram page. If you are not following, just go and subscribe. These are some story of the International Mahila Day, also in the Maternal Day prevention, how I am working on the national level and international level. So I hope कि now I am very known to all of you. तो अब आपको पता चल गया मैं क्या काम कर रही हूँ और किस तरह से मेरा प्रोसेस है, ठीक है। चलो, द सेकंड लर्निंग प्रोसेस अबाउट द गट माइक्रोम। गट माइक्रोम क्या है, हमें क्यों उसको रिसेट करना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आप सबको। जैसे हम वॉच पहनते हैं, तो वॉच का जो सिस्टम है ऑटो सिस्टम है, ठीक है। जो उसका सेकंड कॉर्ड चलता है, उसके बाद उसका मिनट वाला चलता है, उसके बाद उसके आवर्स वाला चलता है। तो जो प्रोसेस चलता है वो किस तरह से सेट है। अगर एक में कोई गलती आ रही तो ऑटोमेटिक वो तीनों में प्रॉब्लम आता है, और उसको रेगुलेट करता है सेल, जिससे उसको पावर मिलता है और पावर से वो रेगुलेट होता है। मान लो कि कोई वजह से आपका एक पोर्शन है वो खराब होता है, तो ऑटोमेटिक दो पोर्शन खराब हो जाते हैं। लेकिन जब आपका सेल खराब होता है तो पूरा मैकेनिज्म है वो खराब हो जाता है, वो तीनों का जो प्रोसेस है चलने का वो खराब होता है। और फिर भी जब भी आप रीसेलिंग करते हो, मतलब न्यू सेल लगा के उसमें डालते हो, न्यू पावर डालते हो, तो प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे वो रुका है वहीं से चलने की ट्राई करता है, लेकिन वो सही टाइम पे सही जगह पे नहीं पहुंच पाता। हम क्या करते हैं, वॉच को रीसेट करते हैं। जब भी हम रीसेट करते हैं उसी के बाद वो वापस से चलना स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलर प्रोसेस इन अवर गट माइक्रो। We have a four type of the gut bacteria, virus, fungi and parasite in our gut. They are damaged with the many circumstances. एंटीबायोटिक लिया, कोई मेडिसिन लगातार जा रहा है, स्ट्रेस जा रहा है, कोई फूड जा रहा है, कोई स्पाइसीज जा रहा है, तो कोई ना कोई एक खराब होता है। एक खराब होने से डिजीज आना स्टार्ट होता है। अब ये सोचना है कि हमें बीमारी कहाँ से आए, ठीक है। मैं 20 ईयर्स से इस प्रोसेस पे काम करती हूँ, और मेरा मेन मोटो ये रहता है कि इंसान रिवर्स होना चाहिए, क्योरिंग सिस्टम नहीं है, और कम्प्लीटली वहाँ वापस जाना चाहिए जहाँ पे वो कम्प्लीट हेल्थी था। तो ये पूरा डीपर लेवल है। मान लो कि किसी को थायराइड आया, ए सिंपल एग्जांपल है। नॉट ओनली गट माइक्रोम को हेल्दी करके ओनली थायराइड को ट्रीट नहीं किया जाता, वी कैन क्योर ऑटो इम्यून ऑल्सो, वी कैन क्योर डायबिटीज ऑल्सो, वी कैन क्योर हाइपरटेंशन ऑल्सो, वी कैन क्योर कैंसर ऑल्सो। लेकिन जब आपके गट माइक्रोम कहीं पे खराब होते हैं तब जाके ही डिजीज आता है। चाहे ओबेसिटी है, चाहे हेयर लॉस है, चाहे स्किन पे पिगमेंटेशन आता है, चाहे आईबीएस है, चाहे कॉन्स डिजीज है, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज है, कुछ भी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपके गट का जो पैरासाइट, मतलब जो मैकेनिज्म है बायोकेमिक, वो खराब हुआ, और वो रिफ्लेक्ट करता है कोई एक ऑर्गन को, ठीक है। अगर बैक्टीरिया खराब होते हैं तो हॉर्मोन्स खराब होते हैं। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन खराब होते हैं तो ऑटोइम्यून डिजीज आता है। अगर पैरासाइट खराब होता है तो हिडन गैस्ट्रिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे गैस बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, ब्लोटिंग बोलते हैं, आईबीएस बोलते हैं। और जैसे वायरस का प्रॉब्लम खराब होता है तो वो आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम 7 डेज पे 100% कोशिश करेंगे कि हम गट माइक्रोम को रिपेयर करें। रिपेयरिंग प्रोसेस जैसे खराब हुआ है उसी तरह से वो रिपेयर होता है। मतलब ऐसा मैजिक नहीं है कि एक दिन में हमने गट माइक्रोम जूस पी लिया तो एक्सट्रीम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यस, आप आज जहाँ से हो उससे कई गुना अच्छे आप नेक्स्ट संडे पे होंगे, क्योंकि आपका गट माइक्रोम जैसे ही रिपेयर होता है तो आपके बॉडी के हार्मोन मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म,
आपके एक्सपेंसिव मैकेनिज्म, आपके आउट मैकेनिज्म, सबके ऊपर इफेक्ट आता है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द गट माइक्रोम। पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमें क्यों ये सारी चीज़ें खाना है और क्या उसका हेल्प है। ठीक है, चलो, तो आई विल शेयर द सेकंड स्लाइड ऑफ द गट माइक्रोबायोम। ठीक है, प्लीज मैसेज मी इफ यू विजिबल द स्लाइड। ओके, आई होप यू सीन दिस पीपीटी ऑन स्क्रीन। ठीक है, अगर नहीं दिखता तो प्लीज मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। चलो, तो हमारा 1 वीक का प्रोसेस है। यहाँ पे हम एनर्जी ट्रांसप्लांट फिनोमिना में जाएंगे। तो डे 1 इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गट। व्हाट इज द गट? Gut have a good role to manage your good and bad bacteria in living your gut. Gut have a capacity to balance your mental health, stress, and affection of the mood. Gut have a capacity to boost your immunity. आप सबको पता होगा कि हमारी सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हमारे गट से बनता है। हम बोलते हैं कि इसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसका मतलब है उसका गट माइक्रोबायोम अच्छे है। ठीक है, और मोर देन 90% इम्यूनिटी हमारा गट रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमें एंटीबायोटिक ज़्यादा लेना हुआ, अगर हमें सप्रेसिव फिनोमिना में है, तो कहीं ना कहीं गट डैमेज है, और गट डैमेज है उसी की वजह से हमें डिजीज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसेस सीखेंगे कि गट हेल्थ क्या है, गट और ब्रेन का कनेक्शन क्या है, गट और इम्यूनिटी क्या है, और खराब होने का रीजन क्या है। मेनली स्ट्रेस, सेकंड है लेट नाइट सोना। 10:30 के बाद जो भी लोग सोते हैं उसके बैक्टीरिया जागते ही रहते हैं, वो रेस्टिंग में नहीं जाते, रेस्टिंग में नहीं जाते तो रिसेट नहीं होते। थर्ड थिंग इज एंटीबायोटिक, एंड देन आफ्टर द फूड। फूड से इतने डैमेज नहीं होते जितने अदर थिंग्स से होते हैं, लेकिन फूड का क्वांटिटी और कंटिन्यूटी हम कितना रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। चलो, गट माइक्रोबायोम कहाँ पे रहते हैं? तो कि हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माउथ से लेके एनस तक स्टार्ट होते हैं। पूरे बॉडी में सारी जगह पे है। सबसे ज्यादा माउथ में है, इज ऑरल गट माइक्रोम। उससे कम हमारे स्टमक में है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद एनस के आसपास है, हमारे नाखून पे रहते हैं, हमारे लिप्स के अराउंड रहते हैं, हमारे नेजल में भी रहते हैं। चलो, ये प्रोसेस आपको थोड़ा इजिएस्ट लगेगा समझने के लिए। अ, हमारा बॉडी ऑरल गट माइक्रो, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस है जो हमारे एसिड को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। आप सबको अगर साथ में करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी ज्यादा एसिडिक है, कहीं ना कहीं एसिड इन्फ्लामेशन है, जस्ट मार्केट में जाकर लिटमस पेपर लेना और मुंह में रखना एंड चेक कि आपका सलाइवा एसिडिक है या अल्कलाइन है। अगर सलाइवा एसिडिक है तो डेफिनेटली आपके गट माइक्रोम इज नॉट गुड। ठीक है, ये आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड माइक्रोबायोम रहते हैं आपके स्किन के ऊपर। हमारा स्किन है सबसे ज्यादा बैक्टीरिया को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे स्किन क्लिनजिंग का भी, जो हमारे नेक्स्ट डे प्रोसेस आता है कि हम उसको स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, हेल्दीएस्ट बनाएंगे। कहाँ से बैक्टीरिया आता है? तो कि बाय बर्थ मदर की वूम से आते हैं। जब भी बच्चा माँ के पेट में रहता है तभी बहुत सारे बैक्टीरिया ऊपर स्किन पे आते हैं। और आपने देखा भी होगा कि न्यूबॉर्न बेबी है, उसके ऊपर एक पतला सा फैट का लेयर रहता है और उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया। अगर कोई भी बच्चे की स्मेल करोगे तो आपको टिपिकल स्मेल आएगा, इस स्किन माइक्रोबायोम। वो कैसे डैमेज होते हैं? वी आर यूजिंग सो मेनी कॉस्मेटिक्स, सो मेनी परफ्यूम्स, एंड ऑल्सो एटमोस्फियर pollution, air pollution, and using the chemical soap, shampoo, and everything. Okay, even oral gut bacteria, सबसे ज्यादा ऑरल बैक्टीरिया डैमेज होते हैं हमारी सल्फर बेस्ड टूथपेस्ट से। ठीक है, हम सुबह उठ के सीधा उसको फॉर्म करने लगते हैं और उसी से हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो 3 दिन हम उस प्रोसेस को भी थोड़ा चेंज करेंगे। उसके बाद आता है बैक्टीरिया। तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जाता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। वहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है, इस 1000 ट्रिलियन हमारे बॉडी में सेल है, उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया उसी के ऊपर है। और उसके इंटरनल एरिया, हमारे एक्सिलरी है, हमारे जेनाइटल है, और हमारे माउथ का इनर पार्ट, ईयर का इनर पार्ट, नेजल का इनर पार्ट, इस सारे जगह पे रहता है। वायरस का भी लोड रहता है और पैरासाइट का भी। नाउ अबाउट द यूरोजेनाइटल माइक्रोबायोम। जेनाइटल ऑर्गन फीमेल और मेल दोनों में वहां पे फंगाई सबसे ज्यादा रहता है, और इसीलिए वो पार्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह यूज होता है। वहां से हमारे बहुत सारे हार्मोन्स न्यूट्रलाइट होते हैं। न्यू बर्थ के लिए वहां से ही प्रोसेस होता है और वहां से ही जेनेटिकली प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है।
तो सीधा अफेक्ट करता है। तो हमारे पूरे शरीर में सारे जगह पे अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगाई है। हम कहीं ना कहीं गलती से उसको मार रहे, कहीं ना कहीं प्रोसीजर से उसके मार रहे। जैसे एक्सिलरी हेयर इज गुड फॉर prevention for fungi infection in our body, but when you are using vaccine threading, so it definitely जो फ्लोरा है उसका डैमेज होता है। when we are using perfume also they also damage. Gut health refers to balance and proper functioning of the gastrointestinal tract, especially microorganism living inside. चलो क्या क्या चीजें याद रखने की जरूरत है, तो कि हमारे शरीर में ट्रिलियन ऑफ माइक्रोबायोम, ठीक है। मैं आप सबको पढ़ने के बाद आप सबको लगेगा कि आपको किसी की जरूरत नहीं, आपका खुद का शरीर, आपका खुद का बैक्टीरिया है जो आपको हेल्दी कर सकता है, बस आपको उसको हेल्दी रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हेल्दी गट्स आपको क्या हेल्प करेगा, तो कि प्रॉपर डाइजेशन देगा, न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन देगा, इम्यून डिफेंस देगा और हार्मोन प्रोडक्शन देगा। तो इसके अलावा तो कोई डिजीज है ही नहीं। हम बहुत कुछ खाते हैं, तो थाउजेंड ऑफ पीपल का क्वेश्चन रहता है कि हम हेल्दी खाना खाते हैं लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम है, हम अच्छा करते हैं फिर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, बिकॉज आपका गट माइक्रो में हेल्दी नहीं है। दैट्स व्हाई यू हैव यूजिंग हेल्दीएस्ट डाइट बट दे आर नॉट गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट। एंड व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट बिहाइंड दैट, there are a more bacterial cell in your gut than human cell in your body. आपके बॉडी में जितने सेल है उससे कई गुना ज्यादा बैक्टीरिया है। चलो व्हाट इज द रोल, है ना, इज अ वेरी मैजिकल थिंग्स फॉर अस कि भगवान ने हमें जो पृथ्वी पर भेजा तो हमारे साथ बहुत सारे हथियार भेजे हैं। जो हथियार है, आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो उसको प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम इतना कुछ गलत कर दिया कि उसको ही डैमेज कर दिया, और जब वो डैमेज हो जाते हैं तो देर इज ए वेरी लेस चांस टू रिकवर वेरी फास्ट। देर इज नो एनी मेडिसिन टू हेल्प टू रिकवर गट माइक्रोम, there is a no any specific therapy to reduce your gut microbe toxin. You have to follow the proper resetting technique, ठीक है। तो हमारे बॉडी में स्टमक में तीन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसे लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकाइल एंड यीस्ट। वो क्या काम करते हैं, सबसे ज्यादा फूड को क्रस आउट करने का काम करते हैं। हम चाहे कितना भी गंदा खा लें, ठीक है, तो वहां पे क्रस करना, क्वीज करना, उसको डाइल्यूट करना, उसको एसिडिक फॉर्म में देना, और हाईली एसिडिक फॉर्म में रहता है। वो लैक्टोबैसिलाई है, वो ऑलरेडी है, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे कि मिल्क का जो लैक्टोबैसिलाई है, जो माना जाता है कि जो डेयरी नहीं लेते, जो नॉनवेज नहीं लेते, उसको B12 रिड्यूस होता है, बल्कि उल्टा होता है, जो लेने से बार बार रिडक्शन में ही जाता है, ठीक है। तो ये स्टमक और डिओडिनम में रहता है, जेजुनम और इलियम में, और स्पाइस फ्लोरा रहते हैं जो पर ml में 10 to 15 फ्लूइड कंटेन में है, तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और कोलन में बहुत ज्यादा, कोलन में प्रोटोजोआस भी है, ईस्ट भी है, स्ट्रेप्टोकोकाइल भी है, कोलिफ्लो सी बैक्टीरिया भी है, यू बैक्टीरिया भी है, बहुत सारे बैक्टीरिया। और ये सब काम क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता है। अगर इसमें से कोई भी दो बैक्टीरिया नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ कि बैड बैक्टीरिया ज्यादा है। बैड बैक्टीरिया क्या है, तो बैड बैक्टीरिया वो है जो गुड बैक्टीरिया को खाते हैं। गुड बैक्टीरिया खत्म करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, आपका गट खुद डैमेज होता है। इट्स कॉल्ड द लीकी गट, इट्स कॉल्ड द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इट कॉल्ड द अल्सरेटिव कोलाइटिस, it starts the piles, it starts the fissures, it starts the constipation and everything with your gut issue, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, जहाँ आपके बैक्टीरिया सही नहीं थे वहीं से स्टार्ट हुआ। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म, जब हम फाइबर्स लेते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे जो जानते हैं, मेरे साथ जो कनेक्टेड, उसको पता है कि हर डाइट से पहले फाइबर लेना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि फाइबर ही गट का खुराक है। अगर हम नॉन फाइबर फूड खाते हैं, मान लो कि हमने कोई ऐसा फूड ले लिया, ओनली प्रोटीन था, ओनली कार्ब्स था, ओनली फैट था, तो फाइबर के बिना बैक्टीरिया ट्रैवल नहीं कर, ठीक है। और उसको ट्रैवल करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मूव होके तभी वो बढ़ेंगी। उसकी जो नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया बढ़ने की जो कैपेसिटी है वो मूविंग पे रहती है, तो उसको मूव करना ज़रूरी है। इसीलिए डाइटेड फाइबर जब हमारे गट्स में जाते हैं तभी जाके वो मूव होते हैं। चलो पढ़ते हैं कितने बैक्टीरिया है, तो कि देयर आर कम्युनिटी, इज नॉट अ सिंगल वन। कभी हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बैक्टीरिया है, इसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगा एंड प्रोटोजोआ, ये पूरा प्रोसेस है।
बैक्टीरिया है वायरस को खा के जीता है, वायरस वो फंगाई को खा के जीता है, फंगाई वो प्रोटोजुआ को खा के जीता है, प्रोटोजुआ वो बैक्टीरिया को खा के जीते हैं। अभी आप अपने आप को समझ लो कि जब आपको कोई इन्फेक्शन आता है, इन्फेक्शन इज अ आउटर ऑर्गेनिज्म, they are defect with your body but they are not defecting with your immune response। ये बहुत ही क्लियर है कि आपके बॉडी में कोई वायरस आता है तो उसके सामने बैक्टीरिया लड़ता है, आपका वायरस नहीं लड़ता, बैक्टीरिया लड़ता है, इसीलिए आपका एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन आता है, आपको फीवर आता है और हाई पीक पे जाता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है और फिर भी एंटीबायोटिक खाते हैं। अभी क्या हुआ, बैक्टीरिया की ज्यादा जरूरत थी जिस वक्त हमें, उसी वक्त एंटीबायोटिक खाया तो बैक्टीरिया जो अच्छे वाले बैक्टीरिया था उसको भी मारा और वायरस का लोड बढ़ा। तो 2 दिन मिटने के बदले 3 से 4 दिन लेते हैं। एंटीबायोटिक का पावर इतना स्ट्रांग रहता है कि वो आपकी खुद की इम्यून सिस्टम को अफेक्ट, मतलब वो आपको सिम्टम्स नहीं देने देते। ठीक है, इसीलिए आपको लगता है कि एंटीबायोटिक लिया तो हम अच्छे हो गए, 2 दिन एंटीबायोटिक गई तो हम अच्छे हो गए, लेकिन आपकी 2 दिन की एंटीबायोटिक पूरी चैनल को डिस्टर्ब कर देती है। जैसे मुझे कोई एक रास्ता पे चलना है, मैं चल रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ से आगे जाकर मुझे मेरा जो भी स्टॉप है वहीं पे पहुंचना है, लेकिन मिडल में अगर मुझे कुछ मिल जाता है और वे वहां पे स्टॉप होती हो तो मेरी कंटिन्यूटी जो प्रोसेस है वो ब्रेक डाउन होती है। सिमिलरली अगर आपको वायरस इन्फेक्शन है और आपको एंटीबायोटिक जाता है, अगर आपको अदर कोई इन्फेक्शन है और बार बार एंटीबायोटिक जाता है तो जो बैक्टीरिया का काम है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करना वो नहीं होता, आपका इम्यून रिस्पॉन्स स्टॉप हो जाता है और खुद की इम्यूनिटी खुद को ही मारना स्टार्ट करती है एंड इट्स जनरेट द ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म बाय द ऑटोइम्यून डिजीज अकर सो फास्टली इन द फील्ड। ठीक है, आपको बता of this reason we are constantly fight to damage our gut microbiome. And gut microbiome damage hona, that means your body is constantly reduction with harmful disease, harmful phenomena, and lastly with the very dangerous situation। तो गट माइक्रोम काम क्या करते हैं, एक डाइजेशन का काम करते हैं, ब्रेक डाउन टू फाइबर्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हम प्रोटीन ज्यादा नहीं लेंगे डाइट पे, ज्यादा फाइबर और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करके लेंगे। दूसरा काम क्या करता है, विटामिन प्रोडक्शन का काम करता है। ये बात आपको मुझे समझाना था कि आपका बॉडी का गट माइक्रोम है वही विटामिन बनाता है। कौन सा विटामिन, तो कि विटामिन बी की पूरी सीरीज, B12, B6, B17, B9, B12। तो B17 is prevention for cancer, B12 is prevention for diabetes, vitamin B6 is a prevention for thyroid, vitamin B2 is a prevention for autoimmune। So there are the shrunkla of all vitamin B and they prevent so many disease। Okay, अगर आपके बॉडी में B12 रिड्यूस होता है तो दिस इज द थिंकिंग प्रोसेस कि आपका गट कहीं ना कहीं खराब है। डू नॉट यूज द आउटर साइडर ऑफ द एनी काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर विटामिन बी, क्योंकि जो भी सिंथेसिस विटामिन जाएगा और गट माइक्रोम को हेल्दी नहीं करेगा, उल्टा डैमेज करेगा, क्योंकि विटामिन प्रोडक्शन का काम ही गट माइक्रोम का है। अगर हम नहीं उसी के काम कराएंगे तो खुद डैमेज होगा। विटामिन के इज a reflection with the coagulation factor of the blood। ब्लड को घट करना है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना है, हार्ट को हेल्दी करना है या आपके किडनी फंक्शन को प्रॉपर करना है, उसका जो काम है वो काम करता है विटामिन के। और विटामिन के प्रोडक्ट कौन करता है, आपका गट माइक्रोम प्रोडक्ट करता है। नो कोई मेडिसिन करता है, नो कोई फूड करता है। हमें हेल्दीएस्ट गट माइक्रोम बनाना है, गट माइक्रोम खुद एक काम करेगा। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले कोई भी इंसान है अगर आपके आसपास आफ्टर 80 या 100 के आसपास है, उसको पूछना कि आपने कभी B12 या विटामिन के की डेफिशिएंसी देखा था या तो आपने कभी ऐसे रिपोर्ट कराए थे, दे नेवर नो, बिकॉज एक कहीं से आता ही नहीं था, ये हमारी बॉडी का खुद का प्रोडक्शन है। और अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो सबसे पहले B12 जाता है, सबसे पहले B12 जाता है। लगातार फाइटिंग में जाते हैं तो B17 जाता है और डेफिनेटली गोज विद द कैंसर। अगर हार्मोनल सप्लीमेंट कांस्टेंट जाता है तो आपका विटामिन B6 चला जाता है। तो वहां पे आपको फोकस करना है कि हम जो अंदर डालते हैं उसी से हमारे गट माइक्रोम के ऊपर इफेक्ट आता है। द थर्ड वर्क क्या है उसका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया। सेम कॉलोनी के
सेम बैक्टीरिया हमें डैमेज भी करते हैं। अगर हमारी बॉडी के खुद के स्ट्रेप्टोकोकाई है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं और आउटर स्ट्रेप्टोकोकाई है उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करते। तो उसको फाइटिंग करने के लिए बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इनफ है। कभी किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारे बॉडी में इनफ बैक्टीरिया है ऑन द प्राइमरी फेज। सेकेंडरी फेज आप आराम से उसको फाइट कर सकते हो। तो टर्शियरी फेज आपको सेप्टिसेमिया हो जाए तब तक अगर आप फाइट करते हो तो उसी वक्त आपको सही डायग्नोसिस की एंटीबायोटिक चाहिए। मैं सही डायग्नोसिस की एंटीबायोटिक क्यों बोलती हूँ, क्योंकि कल्चर कराने के बाद ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। आपके बॉडी में कौन सा बैक्टीरियल कॉलोनी सेंसिटिविटी है वो देख के ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। कभी हेपाजार्डली ऐसे ही कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। मेटाबॉलिक रेगुलेशन हेल्प टू रेगुलेट द फैट स्टोरेज एंड एनर्जी बैलेंस। यहाँ पे आपको एक देखना है कि अगर मैं जो खाना खाती वही खाना वही क्वांटिटी वही टाइम पे आप खाना खाते हो और मेरा वेट 56-55 रहता है और आपका बढ़ता है तो देर इज द प्रॉब्लम इन गट माइक्रोम बिकॉज द गट माइक्रोम रेगुलेट योर फैट स्टोरेज। अगर आपका गट माइक्रोम सही नहीं है तो आपका स्टोरेज सही नहीं रहेगा। हेफाजतली बढ़ेगा या तो बढ़ेगा ही नहीं। बहुत सारे इंसान ऐसे बहुत कुछ खाते हैं तो वेट बढ़ता ही नहीं है और मोर देन 80% ऐसे है कि पानी पीते हैं तो भी वेट बढ़ जाता है बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन इज डिपेंड इन योर गट माइक्रोम। अगर गट माइक्रोम सही नहीं है तो आपका फैट स्टोरेज कैपेसिटी सही नहीं रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द एनर्जी बैलेंस। इंसान जितना बॉडी को काम कराता है उतना बॉडी उसको काम देता है। रिगार्डिंग द एनर्जी इज द फ्लुएंट फ्लो ऑफ योर बॉडी। मैं आपको ये इसीलिए करेक्शन करके बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद इसको फॉलो करती हूँ। मैं अपने आप को हर रोज देखती हूँ सुबह उठते थे रात के सोते तक मैं कांस्टेंट काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रेस्टिंग पीरियड में काम करती हूँ। मेरा मतलब ऑफिस डेस्क वर्क है। मैं पूरे दिन भागती हूँ दौड़ती हूँ हर रोज हर काम में बिजी रहती हूँ लेकिन आई नेवर फील द लो एनर्जी। And this is the reason behind that your body have a capacity to product the enough energy when we are using on the enough direction। ठीक है। तो एनर्जी लो फील करना दैट मीन्स योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट प्रॉपर because when we are eating any kind of the food and food have a extreme energy to digest, so you have to follow on that mechanism। The inflammation control, the maintain the balance in the immune response ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी किसी को ऑटोइम्यून डिजीज है मैं बहुत ही क्लियर कट उसको डाइट देती हूँ और बहुत ही एक्सट्रीम मुझे गुड रिजल्ट मिलते हैं ऑटोइम्यून में। और मुझे पता चलता है मैं बहुत ही हैप्पीली बोलती हूँ ऑटोइम्यून में क्योर कर सकती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि कहाँ पे मुझे काम करना है। इन्फ्लामेशन कंट्रोल। अगर आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है और आपको वो इन्फ्लामेशन को बैलेंस नहीं होता देन एंड देन योर बॉडी गिव एनी काइंड ऑफ ऑटोइम्यून। सिंपल एलर्जी से लेके मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो लाइकन प्लेनस हो सोरियासिस हो अर्टिकेरिया हो एनी स्किन डिजीज हो किडनी डिजीज हो या तो केयू लंग डिजीज हो एसएलई हो कोई भी ऑटोइम्यून हो। ठीक है। वहां पे बेस लाइन होता है इन्फ्लामेशन कंट्रोल और कौन काम करता है इन्फ्लामेशन को आपके गट माइक्रोम। चलो नाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गट ब्रेन। कई बार लगता है ना कि बहुत ही स्ट्रेस है बहुत ही डिप्रेशन है एंजाइटी है और हम दौड़ के भागते जाते हैं कि चलो कहीं पे साइको एनालिसिस करा ले साइकेट्रिक को दिखा दे। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम इज नॉट इन योर ब्रेन नॉट इन योर साइकोलॉजी बट प्रॉब्लम इन योर गट माइक्रोम because your gut microbe decide to generate the hormones। अगर आपको कोई भी डिजीज है देखो बहुत ही सिंपल डिजीज मैंने यहाँ पे मेंशन किए और भी बहुत सारे हैं। एपेटाइट डिसऑर्डर अनकंट्रोल ईटिंग और नो एपेटाइट। Parkinson disease. There is no medicine in the modern science, even no medicine in Ayurveda. The Parkinson is a neuro disease, but is the reflection with your gut brain axis। आपका गट है वो ब्रेन को एक्सेस नहीं देता एंड इज गोज विद द पार्किंसन। अल्जाइमर भूल जाना। अल्जाइमर फेज 1 अब सबको हो गया बिकॉज ऑफ द नेगेटिव ओरा रिफ्लेक्शन विद द ब्लू लाइट। कांस्टेंट मोबाइल लैपटॉप टीवी कुछ ना कुछ चलता है और आपके ब्रेन की साइकिल चलती रहती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी सबको है। बार बार भूल जाना किसी का नाम भूल जाना स्पेलिंग भूल जाना कुछ काम भूल जाना तो ये पूरे अल्जाइमर के साइन एंड सिम्टम्स है बहुत सारे लोगों को हो गया। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज
the myasthenia gravis, myopathy, muscular scleropathy. There is a lots of myasthenia patient. When the muscles are destroyed, it's not a muscles disease, it's a gut disease. Multiple sclerosis, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑटिज्म, स्ट्रेस, एडिक्शन. अगर कोई इंसान कुछ खा रहा है तो डेफिनेटली उसका गट खराब है. अल्कोहल एडिक्शन है, टोबैको एडिक्शन है, स्मोकिंग कर रहा है, इवन एनी काइंड ऑफ द हैबिट इज टी इज ऑल्सो इन हैबिट एंड इट्स बिकॉज ऑफ योर गट माइक्रोम. The liver disease is also with the gut microbe, and the obesity is also with the gut microbe. Now you understand the what is the aura behind the gut and brain. चलो हम ये चीज समझ ले कि अगर हमारे ब्रेन में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसका सेकंड इम्पैक्ट हमारे गट पे आता है. जैसे कोई किसी का डेथ होता है और हमें पता चलता है कि किसी का डेथ हुआ और हम वहां पे गए हैं, तो हमें उस वक्त भूख नहीं लगेगी. हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा. स्टमक को कैसे पता चला कि हम किसी ऐसे डेथ वाली सिचुएशन में है. सेम बॉडी अगर किसी की शादी में जाता है, किसी के फंक्शन में जाता है, तो वहां पे वो तेजी से वही टाइम पे उतना ही खाना खाता है. तो उसके ब्रेन का सीधा रिफ्लेक्शन आता है उसके गट के ऊपर. ठीक है. अपोजिट देखें, अगर पेट खराब है तो मूड ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा. आपको चिड़चिड़ लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो ब्रेन इज द सेकंड गट एंड द गट इज द सेकंड ब्रेन, एंड गट ब्रेन एक्सिस इज मेंटेन विद द गट माइक्रोबायोम. कार्डियोवास्कुलर डिजीज होना वही द रीजन ऑफ द गट माइक्रोम. डायबिटीज होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेजर कॉज ऑफ द गट माइक्रोम. हम ऐसे ही इधर उधर दवाई खाते रहते हैं, हमें पता नहीं कि हमें कितना बैक्टीरिया, कितना वायरस, कितना प्रोटोजुआ मार दिया अभी तक. बहुत सारे लोग, स्पेसिफिकली डॉक्टर को मैं बोलती हूँ, जब अपने आप आसपास दवाइयाँ रहती है ना, तो फट करके दवाइयाँ मुंह में डाल दिया, खा लिया. लेकिन एक मेडिसिन 1000 से भी ज्यादा आपके गट माइक्रोम को डैमेज करती है. नॉट ओनली कि हम सिंपल मल्टीविटामिन लें. मल्टीविटामिन ऑल्सो डैमेज योर फ्लोरा बिकॉज ईच एंड एवरी मेडिसिन हैव ए कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब विद द गट माइक्रोब. हम कुछ भी खाते हैं सीधा जाते हैं हमारे गट में और गट उसको एब्सॉर्ब करता है. बैक्टीरिया को कोई प्रोसेस नहीं है कि वो मेडिसिन को एब्सॉर्ब करे. उसको प्रोसेस है कि वो फूड को एब्सॉर्ब करे. तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होना, डायबिटीज होना बिकॉज ऑफ द गट माइक्रोब. Low grade inflammation, arthritis, allergy, and eczema. Even any kind of the skin disease like है, psoriasis है, urticaria है, allergic rhinitis है, asthmatic attack है, all are depends with your gut microbiome. So these are the all phenomena in that we are reaching to cure our disease with to help to balance gut microbiome. तो गट माइक्रोम क्या है, किस तरह से काम करता है, हमने देखा. नाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ एंड द इफेक्ट ऑफ द गट माइक्रोम. द गट माइक्रोम इज इन द सेंटर एरिया. ठीक है. उसके बैरियर फंक्शन भी है, न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन भी है, मोटर फंक्शन भी है, डाइजेस्टिव एंड एब्सॉर्प्शन फंक्शन भी है, एंड इम्यून फंक्शन भी है. बैरियर क्या करता है, अगर कोई गंदी चीज से आए तो उसको बेर कर देता है. ठीक है. ऐसा हम देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग होता है तो 1000 ऑफ पीपल खाते हैं तो 20 to 25% ऐसे कि उसको कुछ नहीं होता बिकॉज उसके गट माइक्रोम बहुत ही अच्छे हैं. ठीक है. न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स रिलीव करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करते हैं, वो फंक्शन का काम भी गट माइक्रोबायोम करते हैं. मोटर फंक्शन रिगार्डिंग द हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, थ्रोम्बोसिस, ओवरवेट, डायबिटीज, वो सारे फंक्शन मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर डिपेंड है. डाइजेस्टिव एंड एब्सॉर्प्शन, irregularity of digestive symptoms, food intolerance, diarrhea, constipation, skin disease, acne, psoriasis, halitosis, urine tract infection, even genital organ, even sexual disease, even infertility with the reflected with the direct with your gut microbiome. The immune function, respiratory tract infection, allergy, eczema, and chronic inflammation. तो नाउ यू जस्ट विजुअलाइज कि आप कहाँ पे हो. ठीक है. आप इसमें से कहाँ पे आप सेट हो रहे हो, आपको कहाँ से प्रॉब्लम दिखता है कि आपका गट माइक्रोम खराब है और उसको हम किस तरह से रिसेट करेंगे. तो रिसेटिंग टेक्निक इज वेरी मैजिकली, बट ये अंडरस्टैंड करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि हम क्यों रिपेयर कर रहे हैं तब तक आपको रिपेयरिंग का बेनिफिट भी पता नहीं चलेगा. नाउ टू अंडरस्टैंड द गट ब्रेन एक्सिस. गट एंड ब्रेन कम्युनिकेट कॉन्स्टेंट. ठीक है. एक कम्युनिकेशन पाथवे है. अगर आपके ब्रेन में थॉट आया तभी आपके पेट में चीज जाएगा. ठीक है. आपको पिज्जा खाने का मन होगा तभी आप पिज्जा खाओगे. आपको घूमने का मन होगा तभी आप घूमने जाओगे. आपको
पानी पीना है, वो ब्रेन में आया तभी जाके आप पानी, आपको एपेटाइट है, वो फील हुआ तभी जाके आप खाना खाएं। Whole system constantly communicate each and every second. Not a second, but before the second. ठीक है, एक सेकंड में we are changing more than 9,000 thought with your brain and gut. This is the complete research on that. ठीक है, अब बिना ब्रेन से गट नहीं चलेगा, बिना गट से ब्रेन नहीं चलेगा। वो पूरा कम्युनिकेशन पाथवे, चाहे नर्वस है, चाहे हार्मोन्स है, चाहे इम्यून है, चाहे मेटाबॉलिक है, और इतना फास्ट करता है कि आपकी पूरी बॉडी का हैप्पी हार्मोन, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, चारों का पूरा बैलेंस जो है गट से होता है। इंसान खामखा ब्रेन को फोकस करता है और प्रॉब्लम चलता है उससे गट से। दिस इज द मैजिक and the eye-opener phenomena. Our 90% of happy hormone produced by gut. It's not produced by your brain. और वो कहाँ से आते हैं? तो क्या आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया है, वो आपको हैप्पी करते हैं, आपके मूड को, आपकी एंजाइटी को, आपके स्ट्रेस को, आपके कॉग्निटिव फंक्शन को, सबके ऊपर काम करता है। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है ना, नो वन कैन क्योर। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है ना, आप एंजाइटी से बाहर ही नहीं आ सकते। अगर एंजाइटी है तो प्लीज फोकस ऑन योर ब्रेन, प्लीज फोकस ऑन योर गट। आपका गट ब्रेन एक्सिस को कनेक्ट करो, ऑटोमेटिकली आप यहाँ से बाहर आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अनहेल्दी गट कैन कंट्रीब्यूट द एंजाइटी, डिप्रेशन एंड पेन। अगर आपको नहीं पेट में सही लग रहा तो आपको डेफिनेटली एंजाइटी फील होगा। These are the very deeper, but I try to very simple on way कि आप इसको properly follow करोगे तो completely आपको लगेगा कि ना, आप कोई भी सिचुएशन में हैप्पी रह सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द ह्यूमन नेचर, या हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ ले कि अगर हमें लगता है कि हम एक्चुअल ह्यूमन है, ठीक है, चाहे हम एनिमल की तरह जी रहे हैं, चाहे हम बर्ड्स की तरह जी रहे हैं, चाहे हम इंसेक्ट की तरह जी रहे हैं, लेकिन हम है ह्यूमन। तो ह्यूमन का बेसिकली नेचर क्या होता है? ह्यूमन एक्सेस होते हैं, ह्यूमन मूडी रहते हैं, ह्यूमन झगड़ा करते हैं, ह्यूमन हर बार स्ट्रेस में रहते हैं, ह्यूमन हर बार दवाएं खाते हैं। नहीं, दिस इज नॉट अवर नेचर। ह्यूमन इज द हैप्पीएस्ट, ह्यूमन इज द सेटिस्फाइड, ह्यूमन इज द प्योरेस्ट एंड ह्यूमन इज द न्यूट्रल। ठीक है, हम कंप्लीटली न्यूट्रल स्पिरिट है। हम अपनी जरूरियात खुद पूरा कर सके वैसा हमारा बॉडी है। अगर हम फूड को बैलेंस करते हैं, हमने कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है किसी का तो सालों तक सिर्फ पानी पे जीते हैं, और फिर भी उसका सब कुछ चलता है, हार्ट चलता है, किडनी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोई इंसान ब्रेन डेड होता है तो हॉस्पिटल में महीनों जिंदा रहता है, ब्रेन डेड के साथ जिंदा रहता है, उसका ब्रेन खराब है, उसका गट है वो ब्रेन की तरफ काम करता है, वो इंसान जिंदा रहता है। किसी को पैरालिसिस होता है तो ब्रेन का एक साइड चला जाता है, फिर गट माइक्रोम उसको जिंदा रखता है, और जब गट माइक्रोम जाता है there is no one can survive because the gut microbe have a capacity to fight and rebuild ourselves. ठीक है, तो ये प्रोसेस है पूरा जो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि कहाँ से हम डिजीज है। ठीक है, मैं डीपली आपको इसीलिए बताती हूँ कि आपको खुद को डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ को रिपेयर करना है। हमारी गट क्या है, हमारी इम्यूनिटी क्या है। तो गट में एनवायरमेंटल फैक्टर है, एंटीबायोटिक है और एटमॉस्फेयर है। सेकंड है हमारे डाइटरी फाइबर, एनिमल फूड जो हम खाते हैं, और डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं? जो हम फैट स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। और सारी चीजें आती है गट माइक्रोब में। वहाँ नोइंगली अननोइंगली वहाँ पे पूरा मैकेनिज्म चलता है। अच्छा खाओगे तो अच्छा गट माइक्रोम आएगा, गंदा खाओगे तो गंदा गट माइक्रोम बनेगा। गंदा तो नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं अनबिल्ड, ठीक है, अनफोकस्ड। ये चारों एक रेशियो में चलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ एंड फंगाई। ये चारों एक बैलेंस फॉर्म में चलते हैं। अगर एक खराब हो गया तो तीनों ऑटोमेटिक खराब होते हैं। एक के ऊपर लोड बढ़ा तो तीनों ऑटोमेटिक खराब हो जाए। इसीलिए एंटीबायोटिक है, एंटासिड है। मैं 2-3 मेडिसिन का नाम बार बार इसीलिए ले रही हूँ कि वहाँ अब बिना डॉक्टर को पूछे दवाएं खा रहे हैं। एक एंटीबायोटिक है, एक पेन किलर है, एक एंटासिड है, एक मल्टीविटामिन है। ये चारों मेडिसिन बहुत ही खतरनाक है, वायरस के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है।
अब जैसे ही दवाई लिया, आपको टाइम बिंग लगा कि आप बहुत ही ओके हो गए, लेकिन देखना कि धीरे 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 जाके आपका बॉडी का हर ऑर्गन खराब हो रहा है, बिकॉज गट माइक्रोबायोम इज नॉट प्रॉपरली मैनेज विथ द अनन्यूट्रल फिनोमिना ऑफ योर एसिड सिक्रीशन। ठीक है, तो हमने जो खाया उसका इफेक्ट आया हमारे टिश्यू के ऊपर, लीवर के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर एंड लंग्स के ऊपर। ये समझ ले हम डिसबायोसिस क्या होता है एंड द हेल्थीएस्ट गट क्या होता है। ठीक है, ये पूरा सर्कल है। हमें ऐसा पता चलता है कि एटमॉस्फेयर खराब हुआ तो हमें कुछ हुआ, हमें ऐसा पता चलता है कि स्ट्रेस आया तो हमें कुछ हुआ, हमें ऐसा पता चलता है कि हमने कुछ खाया तो हमें कुछ हुआ। तो क्यों होता है? क्योंकि इम्बैलेंस है गट की डाइवर्सिटी। वो इम्बैलेंस क्यों होता है? या तो हम स्ट्रेस ज़्यादा लिया, या तो एटमॉस्फेयर जितना था उससे और खराब हुआ, या तो फूड हम जो खा रहे थे और खा नोइंगली अननोइंगली हम खाते हैं। ठीक है, कई बार तो हमें लगता है कि बहुत ही हेल्दी फूड है और हम खा लेते हैं। जैसे मैं हर स्कूल में जाती हूँ तो हर माँ को पूछती हूँ कि पनीर कितना हेल्दी है, तो हर माँ बोलती है पनीर बहुत ही हेल्दी है। तो हम अननोइंगली बोलते हैं कि पनीर बहुत ही हेल्दी है, बल्कि उल्टा है, पनीर बहुत ही गंदा है गट माइक्रोन के लिए। हमें उसको प्रॉपरली बैलेंस करना पड़ता है, उसको प्रॉपर फ्लोरा देना पड़ता है, तब जाके अच्छे बनते हैं। सबसे बेस्ट गट माइक्रोम होते हैं इनवूम बेबी के, जो माँ के गर्भ में है, और माँ के गर्भ के आसपास का जो अम्नियोटिक फ्लूइड है, प्लेसेंटल फ्लूइड को पी के बच्चा जिंदा रहता है, और उसके एब्डोमेन में सबसे अच्छे गट माइक्रोम। और इसीलिए छोटे बच्चे का जेनेटिक स्ट्रक्चर बहुत ही डाइल्यूट होता है। लेकिन अभी मदर उसी को भी हॉर्मोन्स दे के पैदा करती है, उसी को भी मेडिसिन खा के बनाती है, तो वहाँ पे भी गट माइक्रोम खराब हो गई। इसीलिए पीडियाट्रिक डिजीजेज आर वेरी फास्ट इंक्रीजिंग। डायबिटीज है, कैंसर है, ऑटिज्म, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग। ठीक है, तो हम जहाँ आए द एज ऑफ 40, 30, 40 एंड 50, तो हम तो बहुत ही अच्छे गट माइक्रोम से पैदा हुए, क्योंकि हमारी मदर ने इतनी मेडिसिन नहीं लिया। हम आईवीएफ इंजेक्शन वाले नहीं हैं, हम सी सेक्शन वाले नहीं हैं, और हम में से बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि हम डिलीवरी पे है, तो जो अम्नियोटिक फ्लूइड वाला टेबल रहता है वो बच्चे को सबसे ज्यादा आईजीजी आईजीएम देता है। ठीक है, तो वहाँ सबसे बेस्ट गट डाइवर्सिटी रहती है। तो जब गट डाइवर्सिटी इम्बैलेंस होती है तो क्या होगा? फर्स्ट है, अगर लंग्स में खराब हुआ तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, बिकॉज हमारे सबके बॉडी में टीबी के बैक्टीरिया है, लेकिन अगर हमारा गट हेल्दी है तो बैक्टीरिया प्रोग्रेस नहीं करेगा। बैक्टीरिया गट माइक्रोम का बेस्ट काम है टीबी के सामने फाइट करना, तो हमें डिजीज नहीं देगा। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी लो हुई, गट माइक्रोम खराब हुए, तो ऑटोमेटिक हम टीबी के इन्फेक्शन में चले जाएंगे। सेकंड फॉर्मेशन है फर्मिटस इज क्रिएटिंग ओबेसिटी। कुछ भी ना खाने से वेट बढ़ना, इज कॉल्ड द हार्मोनल वेट गेन। एक बार वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर इंसान खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। मूड स्विंग होते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होगा, खा लो, क्या लो, खा लो, खा लो, खा लो, वही सिचुएशन में चला जाता है। उसके बाद आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्लस माइनस होना। ठीक है, ग्राम में नेगेटिव प्लस माइनस होगा तभी जाके टाइप 2 डायबिटीज आता है। और अगर उसको बैलेंस करते हैं तो टाइप 2 क्योर होता है। यहाँ पे रिवर्स शब्द नहीं है, टाइप 2 क्योर होता है, क्योंकि डेफिनेटली diabetes is a metabolic disorder, is not in disease phenomena, and I have a very huge deepest research on diabetes. तो अगर हमें डायबिटीज को क्योर करना है, you have to balance your gram negative bacteria. अगर आपके बॉडी में इकोलाई बैक्टीरिया इम्बैलेंस होते हैं तो डेफिनेटली इट्स क्रिएट इरिटेबल बowel syndrome. It goes with the Crohn's disease. There is a multiple constipation, diarrheal disease, mucus in stool, blood in stool. There is a lots of disease. अगर आपके एब्डोमेन में ब्यूटारिया प्रोडक्शन ज़्यादा बनता है तो वो क्लोस्ट्रिडियम इन्फेक्शन करता है, एंड इट लीड्स टू सेक्सुअल डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, गोनोरिया, एचआईवी एंड सो मेनी वायरल डिजीज। अगर गट अच्छा है तो इट्स नो डिजीज। तो फिनोमिना हमें सीखने की जरूरत है। चलो, लर्न अंडरस्टैंड अबाउट द इम्यून सिस्टम एंड द गट। 90% इम्यून सिस्टम डिसाइड इन योर गट्स। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्दी रहना है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, बच्चे से लेकिन सबको। मैंने सेशन स्टार्ट किया, गट वर्कशॉप का फर्स्ट पोस्ट डाला था, तब से बोला था कि बच्चों को भी कराना है, बिकॉज द ऑल पीडियाट्रिक आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद द इम्यून सपोर्ट। छोटी छोटी बातों में बच्चों में फीवर आना, कफ कोल्ड होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेन स्टार्ट हो जाना, even multiple diseases, skin dry होना, gums में bleeding होना, there are so many diseases. So उसको भी डिसाइड कराना बहुत ही जरूरी है।
कैसे गट सपोर्ट करता है? इज अ बैरियर प्रोटेक्शन। गट लाइनिंग ब्लॉक द हार्मफुल पैथोजेंस। गट की लाइनिंग को ब्लॉक कर देता है गट माइक्रोब, तो हार्मफुल पैथोजेनेसिस ब्लड के अंदर नहीं जाते। इम्यून सेल को ट्रेन करते हैं। दैट माइक्रोब हैव ए कैपेसिटी टू ट्रेन द इम्यून सेल कि आपको ऑटोइम्यून नहीं देना, ये आपके खुद के सेल है, उसको मत मारो, आउटर सेल को मारना है। तो वो ट्रेनिंग कौन देता है? आपके माइक्रोबायोम ट्रेनिंग देता है। इन्फ्लामेशन रेगुलेशन, आपके बॉडी में बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है वो जाके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। पैथोजन डिफेंस, हार्मफुल बैक्टीरिया के सामने फाइटिंग करता है। और उसका रिजल्ट क्या मिलता है? हेल्दी गट्स लीड्स टू स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड बेटर डिजीज रेजिस्टेंस। अगर कोई भी डिजीज है तो उसको हम प्रिवेंट, क्योर एंड रिवर्स कर सकते हैं। चलो, अगर पुअर गट हेल्थ है, ठीक है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, उससे आगे भी आता है पोस्टबायोटिक। ठीक है, इस 7 डेज में हम पोस्टबायोटिक नहीं पढ़ेंगे, वो थोड़ा डीपर है और सारे डिजीज को क्योर करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन यहाँ एक प्रोसेस तो हमें समझना है कि अगर गट खराब है तो कहाँ से कहाँ तक हम जाते हैं, अगर गट अच्छा है तो वापस कहाँ से कहाँ हम आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या खराब है? आउटर फूड खराब है, शुगर खराब है, ज्यादा सॉल्ट खराब है, पैकिंग फूड खराब है, रिफाइंड चीजें खराब है, कोल्ड चीजें खराब है। इन 7 डेज तक आपको क्या क्या नहीं लेना, मैं पोस्टर ग्रुप में डालती हूँ, इसे सारी कोई भी चीज नहीं लेना। ठीक है, अगर आपके सारी गए पेट में तो उसका सिम्टम्स आएगा आपकी इम्यून सिस्टम के, आपके न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड डेंड्रिटिक सेल है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो आपको डिजीज देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो पॉजिटिव फूड, जिसमें ज्यादा फाइबर से वैसे फूड गए तो आपके गट माइक्रोम हेल्दी हो जाएंगे। द एक ही डायग्राम हेल्दी भी बना सकता है, अनहेल्दी भी बना सकता है। नाउ चॉइस इज योर। ओके, कि कहाँ से हम कैसे जाएंगे। देर आर द 4 मैकेनिज्म जो आपके गट को पुअर करता है, गरीब बना देता है। तो फर्स्ट इज द हाई शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, low fiber intake, artificial addictive, and these are the disturb the gut bacteria balance। तो हमें लगता है कि हम तो एक कुछ भी नहीं खाते, हम तो बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन भाई देखो, आप कोई भी पैकेट लाते हो पीछे देखो कि उसमें आर्टिफिशियल एडिक्टिव है। लो फाइबर इंटेक किसको बोलते हैं? आपके बॉडी वेट का 10% से लो वेजिटेबल जाते हैं, इसको लो फाइबर इंटेक बोलते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस, डू नॉट यूज एनी प्रोसेसिंग, आवर बॉडी हैव ए गुड प्रोसेसिंग मशीन। जितना हमारे पास भगवान ने दिया है उतने कोई भी फैक्ट्री में कोई भी अल्ट्रा प्रोसेस नहीं है, तो खा लो, बॉडी खुद प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, हाई शुगर, यहाँ पे हाई शुगर दोनों तरफ से खराब है। अगर डायबिटिक है और शुगर ज्यादा है तो उसका गट खराब हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना शुगर हाई उतना हेल्दी बैक्टीरिया मरता है, खराब बैक्टीरिया बनता है। अगर आप हाई शुगर खाते हो, आपको डायबिटीज नहीं लेकिन आप शुगर खाते हो, तो आपके ब्लड में शुगर का पाइक आता है, और जैसे ही पाइक आया तो आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया है वो बनना स्टार्ट होते हैं। तो दोनों खराब है, ब्लड शुगर हाई होना वो भी खराब है और खाने में हाई शुगर खाना वो भी खराब है। क्रॉनिक स्ट्रेस, स्ट्रेस अफेक्ट्स द गट मोटिलिटी, आपकी गट की मूवमेंट को स्टॉल कर देगा, डाइजेशन वीक करेगा, माइक्रोबायल को इम्बैलेंस करेगा, द लीड्स टू आईबीएस, ब्लॉटिंग एंड इंडाइजेशन। गैस होना, मुझे बस सिर्फ गैस की तकलीफ है, वो सिर्फ गैस नहीं है, द गैसियस लीड्स टू 80 डिजीज। 80 प्रकार के अलग अलग डिजीज सिर्फ गैस की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू 100 डिजीज। कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुआ दैट मीन्स कि आपको अलर्ट होना है, आपका बॉडी खराब हो रहा है, एंड दे मे गो विद द 100 डिजीज। कहाँ जाएगा वो? आपके जो बैक्टीरियल कॉलोनी खराब होती है उसी के हिसाब से आपके डिजीज आगे जाएंगे। Excess antibiotic. Antibiotic kills harmful bacteria, also kills the beneficial bacteria, and it goes with the dysbiosis। ठीक है, चलो एक चीज मैं समझा दूं कि अगर कोई इंसान को किडनी का ऑटोइम्यून डिजीज होता है, कोई इंसान को अस्थमा मतलब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लीड्स टू अस्थमा, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज है। किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, वो भी ऑटोइम्यून है। किसी को लाइकन होता है, वो भी ऑटोइम्यून है। किसी को केयू होता है, जैसे लंग फाइब्रोसिस, वो भी ऑटोइम्यून है। आर्थराइटिस होता है, रुमेटोइड आर्थराइटिस, वो भी ऑटोइम्यून है। सोरियासिस होता है, वो भी ऑटोइम्यून है। टाइप 1 डायबिटीज है, वो भी ऑटोइम्यून है। देयर इज ए बंडल ऑफ ऑटोइम्यून। तो सबको अलग अलग ऑटोइम्यून क्यों होता है?
तो उसका रीज़न ये है कि आपने कौन से बैक्टीरिया को मारा, वो बैक्टीरिया जो एंटीबॉडी एंटीजन बनाता था वो बंद हो गया, आपका इंटेस्टाइन खत्म हो गया वहाँ पे, और वहाँ से वो ऑटोइम्यून स्टार्ट हुआ। ऑटोइम्यून इज नथिंग एनीथिंग, योर सेल्फ इम्यूनिटी फाइट विथ योर इम्यूनिटी। ठीक है, आपका खुद का शरीर खुद को मार रहा है। बिकॉज ऑफ वॉट, वाई, बिकॉज जिस वक्त बैक्टीरिया को खराब बैक्टीरिया मारना था उस वक्त आपने दवाया लिया, आपने खराब को भी मार दिया, अच्छे को भी मार दिया। अभी जो बैक्टीरिया बचे उसको ये नहीं पता कि खराब कौन सा है कौन सा सही है, एंड देन स्टार्ट बैक्टीरिया इज ऑल्सो क्रिएट द लाइपोसिस। लाइपोसिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन, इज इंक्रीजिंग लाइपोप्रोटीन, इज द पेनलेस कॉजलेस ब्लॉकिंग इन योर हार्ट एंड ब्रेन एंड किडनी। इंसान बैठे बैठे मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अचानक ब्लड क्लॉट हो जाता है, कहीं पे जाके क्लॉटिंग फिनोमिना बनाता है, बिकॉज द गट माइक्रोम क्रिएट विटामिन के। आपका कोई बॉडी कोई फूड नहीं बनाएगा विटामिन के, आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया ही बनाता है विटामिन के। द पुअर स्लीप एंड द लेट नाइट स्लीप, प्लीज टाइम से सोना है। 7 days मुझे दे देना है आपको, 10:30 सो जाना। ठीक है, डू नॉट डू एनीथिंग। आज हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, आई होप कि आपकी पूरी जारे पैक हो गई है और आपके लिए अच्छे वाले गट माइक्रोम बन रहे हैं। प्लीज जाओ उसको देखो और विजुलाइज करो कि आपके जो भी बैक्टीरिया चाहिए इसमें है, और आपको सो जाना है। ठीक है, 7 days, नो लेट नाइट। इंटरप्शन ऑफ योर इरेगुलर स्लीप, बार बार उठना हार्मोन को इम्बेलेंस करता है, मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है और गट बैक्टीरिया की रिदम को चेंज करता है। अब जब सोते हो ना तब सबसे ज्यादा काम आपका इंटेस्टाइन का, आपका ब्रेन सोता है, आपका मसल्स सोते हैं, आपकी आंख सोती है, लेकिन इंटरनल सिस्टम सोती नहीं। आपका लिवर भी काम करता है क्लींजिंग करने का, साफ सफाई करने का, आपका हार्ट भी काम करता है ब्लड क्लॉटिंग को बाहर निकालने के लिए, आपका ब्रीथ भी काम करता है रिडक्शन ऑफ ब्रीथिंग के लिए, और सबसे ज़्यादा काम आपके इंटेस्टाइन करता है। इसीलिए पूरे दिन का खाया हुआ, चाहे अच्छा खाया चाहे बुरा खाया, उसके लिए तो कचरा ही है, पूरा क्रश आउट करके न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब किया और सुबह वो वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ हर रोज देखना है। हम इनटेक हमारे हाथ में है, आउटपुट हमारे हाथ में नहीं है। हमारा आउटपुट कैसा है उसके हिसाब से पता चलता है कि इंटरनल सिस्टम कैसी है। ठीक है, मान लो कि कोई फैक्ट्री है, उसमें से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट को देख के हमें पता चलता है कि ये फैक्ट्री अच्छी है कि खराब है, इसका मशीन अच्छे है कि खराब है। वैसे हमारा टूल पता चलता है कि आपका गट माइक्रोम हेल्दी है कि अनहेल्दी है, और उसका बेस्ट टाइम है स्लीप। जितना नींद करोगे उतना उसके ऊपर बेस्ट इफेक्ट आएगा। दिस द लास्ट स्लाइड, द साइन ऑफ पुअर गट हेल्थ। अगर गट खराब है तो ये पूरे साइनीज आते, डिजीज अलग। ठीक है, ब्लोटिंग होना, गैस फील होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, एसिडिटी होना, फटीग होना, ब्रेन फोक होना, इन्फेक्शन होना, स्किन इश्यू होना, ये सारे साइन है। अगर इसमें से कुछ भी कभी भी होता है, दैट मीन्स कि आपके गट माइक्रोम सही नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, वो आपको कुछ बोल रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि प्लीज संभालो अपने आप को, ये मत खाओ, ऐसे मत करो, मैं डैमेज हो रहा हूँ, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मुझे रिसेट करने की जरूरत है। ठीक है, रिसेट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सर्कल है वो हमें घुमाना है। जैसे वॉच का एग्जांपल मैंने दिया कि आपको वॉच को रिपेयर करना नहीं है, आपने सेल डाल दिए लेकिन फिर भी वो सही नहीं चल रही, तो आपको रिसेट करना है। ऑन द सेम क्राइटेरिया यू हैव टू रिसेट योर गट माइक्रोम। सो दिस आर द थिंग्स इन दैट हमें पता चले कि हम हेल्दीएस्ट बैक्टीरिया ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, हम हेल्दीएस्ट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, और हमारे बॉडी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। मैंने बहुत ही सुपरफिशियली लिया है, ताकि आपको ये पता चले, आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि मुझे 7 days करना है। ठीक है, क्या करना है। अभी क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें पता तो चल गया कि हमारा बॉडी यहाँ पे खराब है, ये चीज़ पे हमें तकलीफ हो रहा है, ये चीज़ हमें रिपेयर करना है, लेकिन रिपेयर करें तो कैसे करें। ठीक है, तो आज सुबह मैंने 5 रेसिपी डाली है ग्रुप में। डाइट में पूरा ग्रुप में डिस्कशन करूंगी। डे 2 क्या है वो फिर से मैं वीडियो अपलोड करूंगी, डे 2 में क्या करना है वो भी मैं अपलोड करूंगी, पूरा डाइट प्रोसेस है वो ग्रुप में जाएगा। एजुकेशन सेशन का अंडरस्टैंडिंग इतना ही है कि हम जहाँ पे है, हर बॉडी हर तरह के गट के साथ जीता है। आपका गट माइक्रोम इम्बैलेंस है, दैट मीन्स
कि आपको कोई ना कोई डिजीज फिनोमिना पे है, ठीक है। लो एनर्जी से, लेकिन हेयर फॉल भी गट डिसाइड करता है। अगर जिनको एसिडिटी ज़्यादा रहता है, जिसको गैसियस ज़्यादा रहता है, उसके हेयर भी डैमेज होना जल्दी स्टार्ट हो जाता है। उसकी स्किन के भी पैचेस आना, एक्ने होना, उसका गट है जो कहीं ना कहीं खराब है, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो हमारा सेशन है वो आपको गट माइक्रोन की तरफ एक लगाव जगाएगा। उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमें बचाता है। और हम जो खाना खाते हैं तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। हम जो मेडिसिन खाते हैं डेफिनेटली उसको डैमेज करते हैं। तो नाउ टू अंडरस्टैंड द 7 days रूल्स। इन 7 दिनों में सबसे पहला है कि हम कोई भी स्ट्रेस में नहीं जाए, ठीक है। अपने आप को ग्रेटिट्यूड फील करो कि यस, हम अच्छे हैं, हम घर पे हैं, हम अपने आप चल सकते हैं, हम अपने आप बोल सकते हैं, हमें जो चाहे चीज़ को देख सकते हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो हमें खुदा का हर वक्त आभार मानना चाहिए। ईश्वर को हम ऑलवेज ग्रेटिट्यूड करें कि आपने हमें ह्यूमन बीइंग बनाया है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि जितना आप पॉजिटिव फिनोमिना पे रहोगे, एक्चुअली वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपका गट खराब है तो आप नेगेटिव ही सोचोगे। जितना आप गट को हेल्दी करोगे, आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग है। तीसरा चीज़ है, डू नॉट गैदरिंग मच मोर, ठीक है। आपको पता है एक बहुत ही अच्छी चीज़ें है, सोशल गैदरिंग हेल्दीएस्ट भी होता है और अनहेल्दीएस्ट भी होता है। जब आपको कहीं जाना होता है तो आपका बॉडी बहुत ही एनर्जेटिक दिखता है, आपको लगता है जाए जाए जाए। लेकिन आप जब वापस आते हो तो वेरी लो एनर्जी में चले जाते हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आपको लगता है नींद नहीं किया, आपको लगता है खाना ठीक से नहीं खाया। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स डायरेक्टली अफेक्ट विथ योर गट। मैनी ऑफ द टाइम ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा चिड़चिड़ करने से आपके गट को वो हार्मोन प्रोडक्शन लेस करता है। इसीलिए जो भी इंसान मेडिटेट रहता है, शांत रहता है, आप उसको कभी जाके मिलना, उसकी स्किन बहुत ही फास्ट ग्लो करती है, उसके हेयर बहुत ही अच्छे रहते हैं, वो बहुत ही शांत दिखते हैं। तो जैसे हम मेंटली कूल डाउन रहते हैं, उतना ही हमारे एसिड सिक्रेशन लो रहते हैं। और जितना एसिड को बैलेंस करते हैं, उतना गट बहुत ही अच्छा माइक्रोबायोम बनाता है। 7 days में हम एटलीस्ट 70 to 80% उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आप सबको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि जो भी किया बहुत मजा आया, मेरा बॉडी बहुत ही हेल्दी फील करा, बहुत ही लाइट फील करा। बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू सेटल डाउन, शांत होना है। कैसे शांत होंगे? जैसे पानी को गर्म करते हैं, तो उबला हुआ पानी को अगर हम देखोगे तो आपका मुंह नहीं दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे दिखते हो। लेकिन वही पानी अगर शांत है, स्थिर है, अगर उसमें जाके आप अपना मुंह देखोगे तो आप सबको दिखेगा। एंड दिस इज द सेल्फ अवेयरनेस थिंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ मिरर, अगर हम 30 से 40 मेंबर, 30 मेंबर अभी यहाँ पे है, और सबको एक मिरर देते हैं, और वही मिरर पूरे कमरे में घुमाते हैं, सब वही मिरर में देखते हैं, सब वही मिरर में देखते हैं, तो क्या आप सबको सेम चीज दिखेगी? मिरर तो एक ही था, लेकिन सबको क्या दिखा? सबको अपने अपने चेहरे दिखे। और जो सेल्फ को दिखा, वही जाके आपकी इंटरनल सिचुएशन को फील करता है। तो प्लीज डू नॉट गो विथ एनी फाइटिंग फिनोमिना, डोंट बी स्ट्रेस। जो भी होता है, यस, हाँ, ओके, ठीक है। जितना लाइट, क्वाइट एंड सेटिस्फाइड रहोगे, उतना आपके गट्स इस सारी रेसिपी को एब्सॉर्ब करेंगे। तो 7 days बहुत ही कूल से जाना है, कोई एफासाड नहीं है। यहाँ पे डाइट बहुत सिंपल है। सुबह बना लिया, पूरे दिन पका हुआ, रेस्ट, कल का खाना आज खाना है, ठीक है। तो कोई हफड़ा जफड़ी नहीं है, कोई ऐसी फैंसी रेसिपी नहीं है कि आपको ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। तो डाइट को बहुत ही लाइट लेना है। वाटर इनटेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सबसे ज़्यादा पानी पिएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, लेकिन मैंने देखा सबका जार अलग अलग है। 1.5 लीटर कांजी बनाना है, ठीक है। 1 लीटर में आपका कुछ नहीं होगा, आपको 2 जार बनाना है। आई विल शेयर द होल डाइट चार्ट, होल डे का किस तरह से लेना है, तो उसी तरह से फॉलो करना है। तो फर्स्ट थिंग, स्लीप प्रॉपर करना है। सेकेंड थिंग, डू नॉट बी स्ट्रेस। स्ट्रेस है तो कांजी पीना है। मैं आपको रेसिपी शेयर करती हूँ कि कौन सा वाटर स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ठीक है। आपको वो लेना है। क्वाइट रहना है, डू नॉट बी ऑन एनी फाइटिंग सिचुएशन, डोंट बी गो विद एनी काइंड ऑफ, ओके, यस, ठीक है।
ये 2 वर्ड्स है जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे, बल्कि कुछ भी हो जाए, अगर हम जितना भी स्ट्रेस लेते हैं उससे सिचुएशन खराब होती है, हेल्दीएस्ट नहीं होती। और स्पेसिफिकली जब हम हेल्दीएस्ट जा रहे हैं, ठीक है, आप मेरे हाथ पकड़ के चल रहे हो, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि कितने गट माइक्रोब बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे, मेरा फंगाई बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा बैक्टीरिया बनेगा कि नहीं बनेगा। हम सब बनाएँगे। बैक्टीरिया भी बनेगा, यीस्ट भी बनेगा, फंगाई भी बनेगा, पैरासाइट भी बनेगा और वायरस भी बनेंगे। ठीक है? सब कुछ बनेगा। तो आप वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमने बहुत सारे मेंबर्स ने ऑलरेडी बना के स्टोर करके रख दिया है, तो वहाँ जाके वो बन रहा है। ठीक है? आपको वो टेंशन वाली बात नहीं है। And the fourth important things, you have to follow the proper instruction. ठीक है? आगे बहुत सारे मैंने वर्कशॉप किए हैं एंड आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस कि आधा करने के बाद छोड़ देते, आधा करना है, आधा नहीं करना, फिर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे कॉलोनीज बन रही है। ठीक है? आप समझ रहे हो, जो बैक्टीरिया बाहर बना रहे हैं उसको हमें खाना है, तो उसको टाइम देना है। अगर 24 आवर्स चाहिए तो 24 आवर्स चाहिए, 48 आवर्स चाहिए तो 48 आवर्स चाहिए। 5 drinks, 5 days. Rice water 24 hours, कांजी 48 hours, sauerkraut जो फर्मेंटेड कैबेज बनाई उसको 3 days चाहिए, 72 hours चाहिए। जो हमने किमची बनाया, वेजिटेबल अचार बनाया, उसको 4 days चाहिए। और फिफ्थ वाला जो है हमारा कम्बुचा, जो फ्रूट्स का हम बनाया, उसको 5 days चाहिए। ठीक है? तो सब कुछ बनाना है, लेकिन उसको एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेस पे लेके नहीं करना। अभी से भिगो के रख दो, वो खुद बन जाएगा, आप फ्री हो जाओगे, उसको अपने आप के रहने दो। ठीक है? और वन मोर अनदर थिंग्स इज दैट, आपको जो भी ग्लास कंटेनर यूज करते हैं उसका ढक्कन प्लास्टिक का होगा तो चलेगा, लेकिन आपको उसको दिन में 2-3 बार ओपन करके वापस क्लोज करना है। ठीक है? अगर ओपन नहीं करोगे तो उसमें बैड बैक्टीरिया भी बनेगा, ईस्ट भी बनेगी। एंड आपको रेसिपी पिक्चर मुझे डालना है, मैं आपको गाइड करूंगी कि ये सही है, गलत है, इसको चेंज करो, या तो पानी ज़्यादा डालो, पानी कम करो, इसमें फंगस आ जाएगा, इसमें बैक्टीरिया नहीं बनेगा। उसका स्मेल से पता चलता है कि इसमें फंगस ग्रोथ हुआ कि बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ। इसीलिए बिना रेसिपी पिक्चर शेयर किए आपको कोई भी खाना नहीं खाना। ठीक है? पूरा ग्रुप एक्टिव रहेगा, सब डालो मैसेज, मैं 24/7 उसी के अंदर ही हूँ, तो आपको मैं पूरा गाइड करूंगी, लेकिन ऐसे हैप्पीली नहीं जाएंगे, क्योंकि आई विश की ये वर्कशॉप है आप सबको इतना इफेक्टिव हो जाए कि आप लाइफ लॉन्ग डिजीज से बाहर आ जाए। और ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है, लाइफ में कभी भी एंटीबायोटिक लिया है, कभी भी पेन किलर खाया है, तो उसका पूरा इफेक्ट है आपके बॉडी पर। उसको निकालने के लिए एक ही फिनोमिना है कि माइक्रोन को बढ़ाओ, गट को हेल्दी करो, तो बैक्टीरियल इफेक्ट जाएगा। हम हर रोज हार्मोनल पिल्स खाते हैं, तो हार्मोनल पिल्स क्या इफेक्ट देता है, आपके गट को प्रॉपरली डैमेज करता है, प्रॉपरली डैमेज करता है। ठीक है? और उसको रिपेयर करोगे तो आपको हार्मोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हार्मोन्स बनाएगा। इवन एनी काइंड ऑफ autoimmune disease we can cure, we can reverse with the increasing our gut microflora. ठीक है? I hope you understand the whole phenomena. That प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, बिकॉज ये वीडियो पूरा यूट्यूब पे जाएगा, तो यहाँ से जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो वहाँ से चेक करेंगे। डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 हम आपको शेयर करेंगे इस रिकॉर्डेड सेशन, तो आपको शेयरिंग में मिलेगा। और जो डे 7 है, वापस क्लोजिंग सेरेमनी में हम मिलेंगे, आपका फीडबैक लेंगे, आपको क्या कौन सा इम्पैक्ट आया उसके ऊपर हम एक लाइव सेशन करेंगे। तो डे 7 रहेगा हमारा लाइव सेशन। उसके अलावा मिडल का जो है 2 to 7 तक वो रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, आपको शेयर किया जाएगा। रिगार्डिंग द डाइट प्रोसेस, आपको मैं डाइट पूरा डिस्कशन करूंगी, उसी के हिसाब से लेना है। ठीक है? ओके देन चलो, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। We will meet tomorrow for day